Hello, dear friends. How are you? Hope you all are too good. Today we will discuss 11 most important objective question from RCC. The first question is in reinforcement concrete structure, the steel reinforcement consists of. So steel reinforcement may be deformed bar भी called twisted bar or mild steel or medium tensile bar, may be anyone as reinforcement. So our option will be D number option. Option D. Next, a twisted bar has about dash more yield stress than an ordinary mild steel bar. It is very interesting question. A twisted bar has generally 50% more than yield stress than as compared to ordinary mild steel. The twisted bar has nearly 50% more yield stress as compared to ordinary mild steel. So our answer will be D. Next question. The compressive strength of concrete is about 10 to 15% of its tensile strength. It is true or false? Not. It is uh, false because tensile strength is 10 to 15% of compressive strength, not compressive strength 10 to 15% of tensile strength. We can analysis in Hindi as टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 15% होता है, न कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ का 10 से 15% होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ का 10 से 15% है, जो कि गलत है। तो ये आपको फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंगली रेनफोर्समेंट बीम द स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। तो as we know, steel reinforcement is provided in tension zone. सिंगली reinforcement सेक्शन में हम लोग टेंशन जोन में स्टील को प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट। ठीक। इन अ सिंपली सपोर्टेड reinforcement concrete beam, the reinforcement is placed. सिंपली सपोर्टेड reinforcement concrete beam है, तो reinforcement आपको कहाँ प्लेस किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज इन द टेंसाइल जोन. This question and above this question is the same, but the way of asking is different. Okay. The joint action is steel and concrete of steel and concrete in a reinforced concrete section depends upon the. तो उसके बीच में जो ज्वाइंट है वो किस पे डिपेंड करे? तो उसके बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील, यस, इस पे डिपेंड करेगा। एब्सेंस ऑफ द कोरिजन ऑफ स्टील, यस, एम्बेडेड इन द कंक्रीट, कंक्रीट में जो आप स्टील डाले हो तो उसके आपको कोरिजन पर भी डिपेंड करेगा कि आप कोरिजन है या नहीं है। ठीक। पार्शियली equal thermal expansion of both the concrete and steel, yes, it is also correct. So our answer is D, all of the above. Now we come on the next question. In a singly reinforcement beam, the effective depth is measured from the compression edge to the. तो इफेक्टिव डेप्थ जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो कंप्रेशन एज, मतलब ऊपर से हम लोग कहाँ तक लेते हैं। तो ऊपर से हम लोग जो है, जो हम लोग नीचे में टेंसाइल जोन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसके सेंटर से लेते हैं, दैट इज क्लियर कवर को मैनेज करके हम लोग लेते हैं। The center of the tensile reinforcement, our answer will be option number B. Okay. Next question. Analysis of reinforcement concrete can be done by. Analysis of reinforcement concrete to be done by. तो इसकी जो एनालिसिस किया जाता है कि स्ट्रेट लाइन थ्योरी से, कि इलास्टिक थ्योरी से, कि अल्टीमेट लोड थ्योरी से, या सभी से। देखिए, स्ट्रेट लाइन थ्योरी और इलास्टिक थ्योरी इज बेसिकली वाइडली यूज्ड इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और अल्टीमेट लोड थ्योरी LSM में हम लोग अल्टीमेट लोड थ्योरी का। तो कंक्रीट रेनफोर्समेंट को एनालाइज करने के लिए हम किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। अल्टीमेट लोड मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड का भी, इलास्टिक लोड मेथड। आप रेनफोर्समेंट कंक्रीट को एनालाइज करने के लिए इसमें से किसी भी मेथड का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है।
the application of elastic theory to the beam is based on the assumptions that, जो आप इलास्टिक थ्योरी यूज करते हो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो वो उसका एजम्पशंस क्या क्या है। एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शंस बिफोर बेंडिंग रिमेन्स द प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इट इज द वेरी बेसिक एजम्पशंस कि प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। Next assumption, all the tensile stress are taken up by reinforcement alone and none of the concrete. Yes, it is also correct, क्योंकि we assume that जितने भी आपका टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है वो जो हम लोग टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया है सिर्फ उसी के द्वारा ली जाएगी, वो कंक्रीट जो टेंसाइल जोन में है उसमें नहीं ली जाएगी। तो ये भी करेक्ट है कि ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय रेनफोर्समेंट अलोन एंड नॉन ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट के द्वारा नहीं ली जाएगी। तो जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस वो आपको जो स्टील के द्वारा ही लिया जाएगा। स्टील रेनफोर्समेंट इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेस व्हेन इट इज एम्बेडेड इन द कंक्रीट। यस, दिस assumption is also correct. We assume that initially the steel is stress free, so our option will be D number. Next question. In case of cantilever beam, the tensile zone is above the neutral axis. Case of cantilever beam में you have to concentrate cantilever beam. When we use the simply supported beam, जब हम लोग simply supported beam यूज करते हैं तो ऊपर में compressive जोन होता है और नीचे टेंसाइल जोन होता है। लेकिन when we use the cantilever beam, जब आप cantilever beam को आप यूज करोगे भाई, तो कैंटिलीवर बीम कुछ इस प्रकार से होगा, और कैंटिलीवर बीम फिर जब आप लोड अप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, ये इस तरह से डिफॉर्म करेगा भाई। जब इस तरह से डिफॉर्म करेगा तो क्या होगा, ऊपर में टेंशन आएगा, नीचे कंप्रेशन आएगा। तो यही कह रहा है कि इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम टेंसाइल जोन इज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। यस, इट इज फुली करेक्ट। तो आई एग्री, मैं इस बात से क्या करता हूँ, एग्री करता हूँ। यस, करेक्ट है, ठीक है। इफ sigma cvc is the permissible stress in compression due to bending in concrete in newton per mm square, the modular ratio is of the order of, this is nothing but the, आपको सीधा सीधा इन्होंने मोडुलर रेशियो का फॉर्मूला पूछ लिया है। तो एज वी नो the modular ratio is 280 by 3 sigma cvc, 280 by 3 sigma cvc। okay, thank you, जय हिंद।